Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe and healthy. So in this video we are going to cover up question number 41 to question number 50. In case you are new here and you have not seen the previous videos, please check out the description box below. So let's begin with question number 41. Mr. Sharma, who was the KMP, that is the manager of XYZ Limited, public company है, public company के manager KMP कौन थे? Who was Mr. Sharma. Retire कब हो गए? 12th of May 2018 को. An examination of the final accounts of the company for the year ended 31st March 2018, the Registrar of Companies found some serious irregularities in writing off of the huge amounts of bad debts and no satisfactory explanation was provided for the same from the company. In such a situation, the Registrar of Companies wants some explanation from the company and Mr. Sharma. Okay, so they want the information from the company as well as from Mr. Sharma. Mr. Sharma कौन है? जो कि रिटायर हो चुके हैं. Can ROC seek explanation from Mr. Sharma? Yes. आपने सेक्शन 206 पढ़ा है, मैंने आपको ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं. सेक्शन 206 कहता है ड्यूटी ऑफ पास्ट ऑफिसर्स सेम रहती है. कोई भी इन्फॉर्मेशन आरओसी को चाहिए वो कंपनी से मांग सकता है, कंपनी को प्रोवाइड करवानी पड़ेगी. एंड सिमिलरली पास्ट ऑफिसर से भी वो इन्फॉर्मेशन मांग सकता है विदाउट एनी टाइम लिमिट, विदाउट एनी हेजिटेशन. मतलब कुछ भी ऐसा स्पेसिफिकेशन नहीं है कि ऐसा होगा तो ही मांग सकता है. नो, कभी भी कितनी भी इन्फॉर्मेशन मांगी जा सकती है फ्रॉम द पास्ट ऑफिसर्स. सो लेट्स सी ऑप्शंस क्या क्या हैं. नो, मिस्टर शर्मा कांट बी कॉल्ड अपॉन, गलत हो गया. कैन बी कॉल्ड अपॉन विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, ऐसा कुछ नहीं है. मिस्टर शर्मा कैन बी कॉल्ड अपॉन फॉर नेसेसरी एक्सप्लेनेशन विद इन अ पीरियड ऑफ 180 days फ्रॉम द डेट ऑफ लीविंग द ऑफिस, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ सेक्शन में. मिस्टर शर्मा कैन बी कॉल्ड अपॉन बाय द रजिस्ट्रार थ्रू अ रिटन नोटिस सर्व्ड ऑन हिम विदाउट एनी पीरियड लिमिट. बिल्कुल ठीक है. करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? डी. सेक्शन 206 पे बेस था प्योरली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 42. A group of creditors of X Limited makes a complaint to the registrar of companies. Okay, creditors ने complaint की है ROC को. They asserted that the management of the company is indulged in destruction and falsification of the accounting records of the company. Okay, the complainants request the registrar to take immediate steps to stop the management to tamper with the records. The complaint was received in the morning on 1st of January 2019 and ROC entered the premises within half an hour for search. The course of action can be taken by the registrar are. तो ROC को जब भी इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर के लिए जाना होता है, बेसिकली सर्च एंड सीजर के लिए जाना होता है, देन इन दैट केस दे नीड ऑर्डर फ्रॉम द स्पेशल कोर्ट. उसके बाद ही वो सर्च सीजर कर सकते हैं. तो लेट्स सी इधर क्या दिया हुआ है. रजिस्ट्रार, तो ये कौन से सेक्शन में था? तो ये सेक्शन 209 में था. सेक्शन 209. रजिस्ट्रार में एंटर एंड सर्च द प्लेस वेयर सच बुक्स आर केप्ट and seize them. Registrar may enter and search the place where such books and papers are kept and can seize only after obtaining an order from the special court. Yes. Registrar may enter and search the place where such books of papers are kept only on the order of NCLT. NCLT का नहीं चाहिए होता, आपको स्पेशल कोर्ट का ऑर्डर चाहिए होता है. Registrar may enter and search the place where such books or papers are kept and give an opportunity to the company to represent why such documents may not be seized. नहीं, तो आपको स्पेशल कोर्ट का पहले ऑर्डर चाहिए, उसके बाद ही आप सर्च सीजर कर सकते हो. ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 43. मिस्टर रमन, एन इंस्पेक्टर अंडर सेक्शन 212 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, इन्वेस्टिगेट्स इनटू द अफेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड. सो इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है. इंस्पेक्टर कौन है? रमन. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन मिस्टर रमन एविडेंस्ड रेलेवेंट फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द ट्रांजैक्शंस मेड बाय द कंपनी एक्स लिमिटेड विद इट्स सब्सिडरी वाई लिमिटेड. ओके, सो जब इन्वेस्टिगेशन हो रहा था तो मिस्टर रमन को कुछ एविडेंसेस मिले, कुछ फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन मिली जिसके बेसिस पर उसको लगता है कि जो ट्रांजैक्शंस हुई है ना कंपनी एक्स लिमिटेड के बीच में विद इट सब्सिडरी वाई लिमिटेड, उसमें उसको कुछ डाउट लग रहा है. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन मिस्टर रमन रिक्वायर्ड टू इन्वेस्टिगेट द अफेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड. वाई लिमिटेड कौन है? वाई लिमिटेड इज दी सब्सिडरी ऑफ एक्स लिमिटेड. तो वो सब्सिडरी कंपनी को भी इन्वेस्टिगेट करना चाहता है. वेदर मिस्टर रमन कैन प्रोसीड विद सच इन्वेस्टिगेशन. तो उसके बाद कुछ क्वेश्चन है क्या? हाँ, इन्वेस्टिगेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी इन द लाइट ऑफ प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. तो अगर आपको पता है तो येस मिस्टर रमन प्रोसीड कर सकता है. सेक्शन 219 के अंदर ये प्रोविजंस दिए हुए हैं कि सब्सिडरी कंपनी के भी रिकॉर्ड्स वगैरह को इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है, लेकिन इसमें आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है ना. तो लेट्स सी इसमें ऑप्शंस क्या दे रखे हैं. Mr. Raman shall be able to proceed with the investigation into the affairs of the subsidiary company after obtaining the prior approval of the director. No. Shall not be able to proceed. Galat. Shall be able to proceed
with the investigation into the affairs of the subsidiary company after obtaining prior approval of the tribunal. No, tribunal से नहीं चाहिए होता, सेंट्रल गवर्नमेंट से चाहिए होता है. Mr. Raman shall be able to proceed with the investigation into the affairs of subsidiary company after obtaining the prior approval of the central government. करेक्ट है बिल्कुल, सेक्शन 219 के हिसाब से दिया हुआ है बिल्कुल. ठीक है, चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 44. अल्ट्रा लिमिटेड अ पब्लिक कंपनी, इनकॉर्पोरेशन हुआ है 13 मई 2019 को. आफ्टर 1 year ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी केम टू नो दैट सम ऑफ द ट्रांजैक्शंस इनसाइड द कंपनी वाज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट and also prejudicial to the interest of the company and its members. So some shareholders decided to make the application to the central government to conduct the investigation into the affairs of the company by appointing the inspector under the provisions of Companies Act 2013. तो आपको पता है होगा, तो जो शेयर होल्डर्स हैं वो डेफिनेटली स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई कर सकते हैं. सेक्शन 2110 में हम पढ़ चुके हैं चीज़. 4 पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो ऑर्डर पास कर सकता है फॉर इन्वेस्टिगेशन, जिसके अंदर भी 3 पॉइंट्स जो होते हैं वो डिस्क्रिशनरी होते हैं और 1 पॉइंट कंपल्सरी होता है. कंपल्सरी कौन सा होता है? जब ऑर्डर ट्रिब्यूनल या कोर्ट से आता है. लेकिन अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है या फिर पब्लिक इंटरेस्ट में है या फिर आरओसी या इंस्पेक्टर की रिपोर्ट के बेसिस पर सीजी चाहे तो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर पास कर सकता है ना. तो यहाँ पर आ जाते हैं ऑप्शन नंबर 1. नो द शेयरहोल्डर्स डिडंट हैव द राइट. गलत. Yes, the shareholders after passing the special resolution can make the application to the central government to conduct the investigation under section 210. बिल्कुल सही. Shareholders can make the application without, नहीं, without special resolution नहीं कर सकते. SR पास होता है तभी कर सकते हैं. No, the shareholders even after passing SR cannot. तो ये भी गलत है. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस केस में? करेक्ट आंसर इज B. Let's move on to the next question. Question number 45. Central government has appointed Mr. Rishikesh as an inspector to conduct investigation into the affairs of the company of Overtake Limited. Public company है, ऋषिकेश इंस्पेक्टर है, उसको अपॉइंट किया इन्वेस्टिगेट करने के लिए. In accordance with the provisions of Companies Act 2013, during investigation it was found that the company has reduced the position of Mr. Gopal, who was the senior employee of the company earlier, within few days after the start of investigation. तो यहाँ पर आ गया प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज वाला सेक्शन. प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज वाला सेक्शन कौन सा था? सेक्शन नंबर 208, जिसके अंदर स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो आपको ट्रिब्यूनल का अप्रूवल चाहिए होगा, उसके बाद ही आप ऐसा कर सकते हो. एंड दैट अप्रूवल विल बी रिक्वायर्ड 30 days के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन. तो देखते हैं. कंपनी डिडंट ट्राई टू ऑब्टेन द ऑर्डर फ्रॉम ट्रिब्यूनल बिफोर टेकिंग दिस एक्शन. तो यहाँ पर गलती कर दी, तो ऐसा नहीं कर सकते थे वो. मिस्टर गोपाल वॉन्ट्स टू नो वेदर द कंपनी हैव द राइट टू रिड्यूस द रैंक ऑफ एम्प्लॉय ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन. तो कब तभी कर सकते थे जब आपने ट्रिब्यूनल से अप्रूवल लिया होता. सो येस, रिडक्शन ऑफ रैंक इज द इंटरनल मैटर ऑफ द कंपनी. इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इंटरनल मैटर नहीं है अब. येस, द कंपनी फाउंड एम्प्लॉय इज नॉट सुटेबल. गलत. No, the company cannot reduce the rank of employee during investigation without approval of the tribunal within 30 days of the date of the application. From the date of application 30 days के अंदर अंदर approval लेना पड़ता है. Company can reduce the rank without approval. गलत. Correct answer क्या है? C. Let's move on to the next question. Question number 46. While conducting an inspection under section 207 of the Companies Act 2013, the inspector noticed various irregularities. Inspection हुई section 207 में एंड आपका इंस्पेक्टर को काफ़ी सारी इरेगुलरिटीज़ मिल रही हैं. द इंस्पेक्टर सीक्स नेसेसरी एक्सप्लेनेशंस फ्रॉम द डायरेक्टर्स कंसर्न्ड रिगार्डिंग दोज इरेगुलरिटीज़. द डायरेक्टर फर्निश्ड नेसेसरी एक्सप्लेनेशंस एंड अकॉर्डिंगली द इंस्पेक्टर प्रिपेयर्ड द इंस्पेक्शन रिपोर्ट अंडर सेक्शन 208 of the Act. You are required to state that to whom the inspection report shall be submitted and whether an inspector has the right to make recommendations for further investigation. तो आपको पता होगा सेक्शन 208 के अंदर इट्स मेंशन, सेक्शन 208 के अंदर इट्स मेंशन कि आपको ये जो रिपोर्ट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करनी होती है. एंड येस, यू आर अलाउड टू मेक द रिकमेंडेशंस फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन. इंस्पेक्टर को पूरी अथॉरिटी है. द इंस्पेक्शन रिपोर्ट शैल बी सबमिटेड टू द ट्रिब्यूनल. नो, ट्रिब्यूनल को नहीं करनी होती, सेंट्रल गवर्नमेंट को करनी होती है. द इंस्पेक्शन रिपोर्ट शैल बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार. नो, the inspection report shall be submitted to the central government and the inspector has the right to make recommendations for further investigation provided he has the reasons to support this recommendation. बिल्कुल ठीक है. inspection report shall be submitted to the serious fraud. नहीं, ये भी गलत है. correct answer क्या है? C. Let's move on to the next question. Question number 47. A Limited was amalgamated into AB Limited. AB Limited had held 100% shares in AC Limited. Okay. आराम से करते हैं. ए लिमिटेड एक कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, इसका अमेलगमेशन हो रहा है ए बी लिमिटेड के साथ.
ठीक, AB लिमिटेड ने 100% शेयर्स एक्वायर कर रखे हैं AC लिमिटेड में। अगर आपको विजिबल नहीं है तो मैं इसको रब कर देती हूँ। नाउ इट्स विजिबल। AC लिमिटेड में 100% शेयर्स एक्वायर कर रखे हैं AB लिमिटेड ने। ओके, सो ये 100% शेयर्स हो गए, इसका मतलब ये सब्सिडरी कंपनी है इसकी। ठीक है, बोथ AB लिमिटेड एंड AC लिमिटेड हेल्ड 10,000 शेयर्स इन A लिमिटेड। तो दोनों के 10-10 हज़ार शेयर्स हैं या सिर्फ 10,000 हैं? दोनों के मिला के देयर इज बोथ AB लिमिटेड एंड AC लिमिटेड हेल्ड 10,000 इन A लिमिटेड बिफोर द अमेलगमेशन टुक प्लेस। दोनों के पास 10-10 हज़ार शेयर्स हैं इन A लिमिटेड। तो A लिमिटेड के अंदर 10,000 शेयर्स हैं AB के, 10,000 शेयर्स हैं AC ने होल्ड कर रखे हैं, एंड A लिमिटेड हैड 1 लाख इश्यूड शेयर्स बिफोर अमेलगमेशन। तो बेसिकली इसके पास टोटल 100 के शेयर्स हैं, 10 के AB के पास हैं, 10 के AC के पास हैं। ठीक है, एंड 70,000 शेयर्स देयर इन वर हेल्ड बाय B लिमिटेड। तो एक कंपनी और B है जिसके पास 70,000 शेयर्स हैं। इसका मतलब जो 10 बच गए वो किसके पास हैं? B Limited, who also later became the shareholder in AB Limited under amalgamation. But the shareholders apart from B Limited and excluding AB and AC holding 10,000 shares did not become the shareholders in new AB Limited. Okay, तो ये आपके shareholders नहीं बने हैं in the amalgamated company. ठीक है, assuming all other conditions for amalgamation and the nature of merger are fulfilled, would this be? तो आपको बताना है ये nature of merger है या नेचर ऑफ परचेज है। ये जो अमेलगमेशन हुआ है ये इन द नेचर ऑफ मर्जर है या इन द नेचर ऑफ परचेज है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कंडीशंस याद करनी पड़ेंगी सबसे पहले। अगर किसी अमेलगमेशन को इन द नेचर ऑफ मर्जर होना होता है तो उसके लिए टोटल 5 कंडीशंस हैं। अगर ये 5 की 5 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं देन इन दैट केस वो अमेलगमेशन नेचर ऑफ मर्जर में माना जाता है, अदरवाइज नेचर ऑफ परचेज। तो वो 5 कंडीशंस क्या क्या थी? सबसे पहली कंडीशन थी कि सारी की सारी एसेट्स और लायबिलिटीज जो ट्रांसफरर कंपनी की हैं वो ट्रांसफरी के पास पहुंच जानी चाहिए। इसमें यहाँ पर उससे रिलेटेड कोई पॉइंट नहीं है। सेकेंड कंडीशन होती है शेयर होल्डिंग मोर देन इक्वल टू 90% ऑफ द फेस वैल्यू जो होनी चाहिए वो आपकी ट्रांसफरी कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाने चाहिए। तो बेसिकली जो आपकी ट्रांसफर कंपनी है उसमें जितने शेयर होल्डर्स थे ना उनका 90% या 90% से ज़्यादा की फेस वैल्यू के शेयर्स आपकी ट्रांसफरी कंपनी के पार्ट बन जाने चाहिए, बट एक्सक्लूडिंग द शेयर्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी एंड इट्स सब्सिडरी। तो यहाँ पर अगर हम देखें टोटल 80,000 शेयर्स ऐसे थे विच वर एक्सक्लूडिंग ट्रांसफरी कंपनी एंड उसकी सब्सिडरी के शेयर्स। ठीक है, इसका 90% या 90% से ज़्यादा आपका ट्रांसफर कंपनी के पास जाना चाहिए था। इसका 90% देखें तो 72,000 आता है, पर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 70,000 शेयर्स होल्ड करने वाली कंपनी B लिमिटेड ही शेयर होल्डर बनी है AB लिमिटेड में, विच इज़ दी अमेलगमेटेड कंपनी, विच इज़ दी ट्रांसफरी कंपनी। जिसका मतलब है कि 72,000 होता या इससे ज़्यादा होता तो ये इन द नेचर ऑफ मर्जर बन जाता अभी 2 कंडीशंस के हिसाब से, क्योंकि इन्होंने बोला अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर की बाकी सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। तो बाकी सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही होंगी एक्सेप्ट दिस वन। क्यों? क्योंकि 90% या 90% से ज़्यादा की फेस वैल्यू आपके नेक्स्ट जो ट्रांसफरी कंपनी है उसके शेयर होल्डर्स बन जाने चाहिए थे, बट यहाँ कितने बन रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ 70,000 शेयर्स, 72,000 नहीं बन रहे। इसी वजह से क्या होगा? इस वजह से ये प्रोविजन ये जो पॉइंट है ये वायलेट हो रहा है। फिर भी तीसरी कंडीशन की बात कर लेते हैं। मैंने अभी तक आपके साथ 2 कंडीशन डिस्कस करी हैं आउट ऑफ 5। पहली क्या थी? असेट्स लायबिलिटीज ट्रांसफर हो जानी चाहिए ट्रांसफरर कंपनी की ट्रांसफरी कंपनी के पास। सेकंड कंडीशन थी मोर देन इक्वल टू 90% ऑफ द फेस वैल्यू जो है वो ट्रांसफरी कंपनी में ट्रांसफर हो जानी चाहिए, एक्सक्लूडिंग द शेयर ऑफ ट्रांसफरी एंड इट्स सब्सिडरी। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन थी कंसिडरेशन जो भी रिसीव करेगा ट्रांसफर कंपनी के शेयर होल्डर्स वो सिर्फ और सिर्फ शेयर्स में होना चाहिए, एंड अगर कोई फ्रैक्शन है तो ही वो कैश में पे हो सकता है, अदरवाइज बाकी सारा जो भी कंसिडरेशन है दैट शुड बी इन टर्म्स ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो यहाँ भी शेयर्स ही मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चौथी कंडीशन क्या है? चौथी कंडीशन है कि जो ट्रांसफर का बिजनेस है वो अभी भी इंटेंशन आपकी ये है कि आप उसको चलाओगे, कैरी करोगे आगे। ठीक है, ऐसा नहीं है उसको बंद करने के लिए आप अमेलगमेशन कर रहे हो। फिफ्थ कंडीशन थी कि कोई भी आप एडजस्टमेंट नहीं करोगे इन दी एसेट्स लायबिलिटी की बुक वैल्यू,
जो ट्रांसफर कंपनी से आपको मिली है, एक्सेप्ट फॉर दोज एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो आप सिर्फ और सिर्फ अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज के साथ उनको यूनिफॉर्म बनाने के लिए करना चाहते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आप उसकी कोई भी बुक वैल्यू को चेंज नहीं करोगे, किसकी, एसेट्स और लायबिलिटीज की। ठीक है, तो ये मेरी 5 कंडीशंस होती हैं। अगर 5 की 5 सेटिस्फाई हो जाती तो ये इन द नेचर ऑफ मर्जर बन जाता, बट सिंस एक कंडीशन वॉयलेट हो गई इसीलिए इन द नेचर ऑफ परचेज हो जाएगा। आई होप यू आर क्लियर विद दिस क्वेश्चन। 5 कंडीशंस होती हैं किसी भी अमेलगमेशन को इन द नेचर ऑफ मर्जर या इन द नेचर ऑफ परचेज बनने के लिए। 5 की 5 कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो नेचर ऑफ मर्जर, नहीं तो नेचर ऑफ परचेज। 5 कंडीशन क्या है, मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा रही हूँ। फर्स्ट कंडीशन, एसेट्स लायबिलिटीज ट्रांसफर कंपनी की ट्रांसफर कंपनी में ट्रांसफर हो जानी चाहिए सारी की सारी। जो एसेट्स लायबिलिटीज ट्रांसफर होंगी दे शुड नॉट बी एडजस्टेड, उसकी बुक वैल्यू एडजस्ट नहीं होनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम दी एडजस्टमेंट्स जो आपको करनी पड़ रही हैं बिकॉज ऑफ मेकिंग दी अकाउंटिंग पॉलिसीज यूनिफॉर्म। उसके अलावा कोई भी बुक वैल्यू में आप एडजस्टमेंट नहीं करोगे। थर्ड कंडीशन क्या है, जो शेयर होल्डिंग होगी, जो शेयर होल्डर्स हैं ट्रांसफरी कंपनी के, बेसिकली जो ट्रांसफर कंपनी के शेयर होल्डर्स जो हैं वो कंटिन्यू करेंगे टू बी इन दी ट्रांसफरी कंपनी एंड दैट शुड बी एटलीस्ट 90% ऑफ द फेस वैल्यू एक्सेप्ट द शेयर्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी एंड इट्स सब्सिडरी। ठीक है, जो कि यहाँ पर वॉयलेट हो गई क्योंकि 72,000 होना चाहिए था, बट कितने हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ 70 ही आपके बने हैं। अगर इन 10 में से 2,000 और आ जाते ना तो फिर आपका ये इन द नेचर ऑफ मर्जर माना जाता। चलो, हम 3 कंडीशन डिस्कस कर चुके हैं, चौथी कंडीशन पर आते हैं कि जो कंसिडरेशन पे करा जाएगा बाय दी ट्रांसफरी कंपनी टू द ट्रांसफर कंपनी दैट विल बी इन शेयर्स, एंड अगर कोई फ्रैक्शन है सिर्फ वो अमाउंट आपका कैश में पे हो सकता है। नेक्स्ट, जो बिजनेस है ट्रांसफर कंपनी का वो आपका इंटेंशन है टू कंटिन्यू इट। ठीक है, सो ये 5 कंडीशन होती हैं। आई होप आपको सारी की सारी याद भी हो गई हैं और समझ भी आ गए हैं। तो सिंपल है, इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48, बी लिमिटेड वाज डीमर्ज्ड इनटू बी लिमिटेड वाज डीमर्ज्ड इनटू बी रियलिटी लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। अच्छा, तो ये बी लिमिटेड थी, इसने डिवीजन टाइप कर दिया, एक रियलिटी लिमिटेड बना दी और एक अपनी खुद की अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, तोड़ दिया बेसिकली अपने आप को 2 पार्ट्स में। What type of demerger is this? Total merger, partial merger, internal reconstruction, demerger in the nature of purchase. Partial demerger है, क्यों? क्योंकि अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो टोटल डीमर्जर तो हुआ नहीं ना किसी भी एंगल से। अगर ये खत्म हो जाती तो टोटल डीमर्जर होता। यहाँ तो रियलिटी लिमिटेड और बी लिमिटेड अब एग्जिस्ट कर रही है, तो बी लिमिटेड स्टिल एग्जिस्ट कर रही है, एक्सक्यूज मी। तो यहाँ पर क्या हो गया, पार्शियल डीमर्जर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। द टाइम लिमिट विद इन which the representation if any, 1 मिनट, इसको करने से पहले मैं आपको ना पिछले क्वेश्चन में दोनों पॉइंट्स और समझा देती हूँ। देखो, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन भी नहीं हो रहा है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में तो आपका ऐसा होता है ना, क्रेडिटर्स वगैरह कुछ आपको रिबेट्स दे रहे होते हैं कि ठीक है चलो हमारा पेमेंट मत करना वगैरह वगैरह, ऐसा तो कुछ नहीं है, तो डीमर्जर हो रहा है। दूसरी चीज़, ये डीमर्जर इन द नेचर ऑफ परचेज भी नहीं है, कोई परचेज थोड़ा ना करा, आप अपनी कंपनी को खुद ही डिवाइड करो 2 पार्ट्स में, जैसे हम डिविजन्स को डिवाइड कर देते हैं ना कि चलो अभी इसकी अलग कंपनी बना देते हैं, इसको तोड़ के दूसरी कंपनी बना देते हैं, तो बस ये वो चीज़ हो रही है। एंड सिंस ये एग्जिस्ट कर रही है अभी भी, इसीलिए पार्शियल डीमर्जर है, टोटल डीमर्जर नहीं है। ठीक है, चलो, मुझे लग रहा था थोड़ा मैंने एक्सप्लेन कम किया, इसलिए मैंने सोचा एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। चलो, एनीवेज आपको समझ आ गया। चलो, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 49। टाइम लिमिट विद इन विच द रिप्रेजेंटेशन इफ एनी ऑफ द sectoral regulators shall be made within dash from the date of receipt of notice of meeting to be called, held and conducted by the tribunal। तो ये तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका सेक्शन नंबर 230 पर बेस्ड है, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमेलगमेशन, जिसमें आपको 30 डेज के अंदर अंदर अगर कुछ भी रिप्रेजेंटेशन करना होता है रेगुलेटर्स को, जैसे कि इनकम टैक्स अथॉरिटी वगैरह वगैरह, तो 30 डेज का टाइम दिया जाता है। अगर कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं आती तो उस केस में मान लिया जाता है कि कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो 30 डेज का टाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। द स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट शुड बी अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स और क्लास ऑफ मेंबर्स और क्रेडिटर्स और क्लास ऑफ क्रेडिटर्स। व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर द सेम। तो आपको पता होगा, ये वाला भी बहुत इजी सा पॉइंट है। इसमें आपको सेक्शन 230 के अंदर डुअल मेजॉरिटी देखनी होती है। पहला, इन टर्म्स ऑफ नंबर यू हैव टू सी कि मोर दैन 50% होना चाहिए, मेजॉरिटी फॉर्म होनी चाहिए। एंड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू आपको देखना पड़ता है मोर देन इक्वल टू 3/4। ठीक है, चलो, इट शैल बी अप्रूव्ड बाय द मोर देन 50% मेजॉरिटी इन नंबर of members, class of members, creditors, class of creditors who are present in voting at the meeting, ये एक कंडीशन होती है। It shall be approved by more than 75% majority in value of members, class of members, creditors और class of creditors who are present in voting at the meeting, ये सेकंड कंडीशन होती है।
इट शैल बी अप्रूव्ड बाय मोर देन 75% मेजोरिटी नंबर, गलत हो गया. सो बोथ ए एंड बी टुगेदर इज आर दी कंडीशंस. ये भी सेक्शन 230 पर बेस्ड था. चलो, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ़ यू लाइक द वीडियोज़ प्लीज़ उनको लाइक करना मत भूला करो. उससे वीडियो की थोड़ी रीच बढ़ती है, जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कनेक्ट हो पाऊंगी एंड दिस विल हेल्प माई चैनल टू ग्रो. तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कर दिया करो अगर आपको पसंद आती हैं. तो आपके फीडबैक्स और सजेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो वो आप कमेंट सेक्शन में हमेशा दे सकते हैं. आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम और लिंक्डइन पर, विच द लिंक्स ऑफ विच आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. ऑल्सो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम लगती है या कोई भी ऐसा लगता है कि किसी चीज़ में थोड़ी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है या फिर आपको कोई कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा, तो आप मुझे प्लीज़ बता सकते हैं. ठीक है, मैं इंप्रूवमेंट लाने की पूरी कोशिश करूँगी. सो या, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड आई होप यू ऑल आर हैप्पी, सेफ एंड I wish you all the best for your exams. So yeah, that's all for today. I'll see you in the next video. Till then, stay safe, stay healthy, and bye bye.